রাত পেরোলেই পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির 2024 সালের আলুর লোডিং রিপোর্ট প্রকাশিত হবে। এবছরের লোডিং রিপোর্টই ভাগ্য নির্ধারণ করবে বাংলার লক্ষ লক্ষ আলু সংরক্ষণকারীর জন্য কেমন হতে পারে 2024 সাল। আমাদের নজর থাকুক সমিতির রিপোর্টের দিকে, আর আপনারা 24 সালের আলুর লোডিং রিপোর্ট দেখার জন্য নজর রাখুন ইন্ডিয়া পটেটো নিউজের পর্দায়। নমস্কার, আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া পটেটো নিউজ, আর আজকের এই প্রতিবেদনে আমরা আপনাদের দেখাবো গুজরাটের আলু লোডিং রিপোর্ট ও উত্তরপ্রদেশের ডাম্প আলুর তথ্য সংগ্রহের গ্রাউন্ড রিপোর্ট। বাংলার আলুর সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য যেমন পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি আছে, ঠিক তেমনি ভারতবর্ষের গুজরাট রাজ্যের আলুর সঠিক ও নির্ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য রয়েছে গুজরাট কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন। এবার চলুন এক নজরে দেখে নিই গুজরাট কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্ট অনুযায়ী এবছর অর্থাৎ 2024 সালে গুজরাটের কোন কোন জায়গায় কত প্যাকেট আলু লোড হয়েছে। এখনো পর্যন্ত যারা যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আলুর সব খবর সবার আগে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও ফেসবুক পেজটি ফলো করুন। এবছর অর্থাৎ 2024 সালে গুজরাট স্টেটের বনস্কন্ট জেলার দিশা এলাকায় মোট আলু লোড হয়েছে 3,11,47,376 প্যাকেট। গত বছর অর্থাৎ 2023 সালে গুজরাট রাজ্যের দিশাতে মোট আলু লোড হয়েছিল 2,84,49,678 প্যাকেট। গত বছরের চাইতে এই দিশাতে মোট 26,97,698 প্যাকেট আলু এবছর বেশি লোড হয়েছে। এবছর অর্থাৎ 2024 সালে গুজরাট স্টেটের খেদা জেলাতে 27,69,600 প্যাকেট আলু লোড হয়েছে। 2023 সালে এই খেদা জেলায় মোট আলু লোড হয়েছিল 24,32,700 প্যাকেট। এবছর খেদা জেলাতে 3,36,900 প্যাকেট আলু বেশি লোড হয়েছে। গুজরাট রাজ্যের সবরকাঁথা জেলায় এবছর মোট আলু লোড হয়েছে 1,51,23,334 প্যাকেট। গত বছর সবরকাঁথা জেলাতে 1,34,49,970 প্যাকেট আলু লোড হয়েছিল। গত বছরের তুলনায় এবছর সবরকাঁথা জেলায় 16,74,264 প্যাকেট আলু বেশি লোড হয়েছে। গুজরাট রাজ্যের মেহসানা জেলার বিজাপুরে এবছর অর্থাৎ 2024 সালে মোট আলু লোড হয়েছে 34,68,450 প্যাকেট। আগের বছর অর্থাৎ 2023 সালে গুজরাট রাজ্যের এই বিজাপুরে মোট আলু লোড হয়েছিল 32,58,068 প্যাকেট। গত বছরের তুলনায় এবছর 2,10,382 প্যাকেট আলু বিজাপুরে বেশি লোড হয়েছে। গুজরাট রাজ্যের গান্ধীনগর জেলার দেহগাম এলাকায় এবছর অর্থাৎ 2024 সালে মোট আলু লোড হয়েছে 71,79,355 প্যাকেট। আগের বছর অর্থাৎ 2023 সালে এই দেহগামে মোট আলু লোড হয়েছিল 70,30,766 প্যাকেট। 2023 সালের চাইতে এবছর 1,48,589 প্যাকেট আলু বেশি লোড হয়েছে। সমগ্র গুজরাট রাজ্যে এবছর মোট আলু লোড হয়েছে 5,96,88,115 প্যাকেট। 2023 সালে সারা গুজরাট স্টেটে মোট আলু লোড হয়েছিল 5,46,21,182 প্যাকেট। গুজরাটে আলু অনেক কম লোড হবে, আলুর ফলন হয়নি, এসব গুজব শোনা সত্ত্বেও আগের বছর অর্থাৎ 2023 সালের চাইতে এবছর অর্থাৎ 2024 সালে 50,66,933 প্যাকেট আলু বেশি লোড হয়ে গেল। অর্থাৎ যেই গুজরাট সারা দেশের আলুর বাজারকে গরম করে দিল 2024 সালে, সেই গুজরাটেই আগের বছরের চাইতে 50 লক্ষেরও বেশি প্যাকেট আলু লোড হয়ে গেল। দর্শক, এই জন্যই কথাই বলে গুজবে কান দেবেন না। এবার আসুন এক নজরে দেখে নিই উত্তরপ্রদেশের মেনপুরি জেলার ডাম্প আলুর বর্তমান পরিস্থিতি কি রয়েছে। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार।
ये हम जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह का क्या नाम है, कौन से जिले में पड़ता है ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अलीपुर खेड़ा के पास एक मजरा है, ग्राम अकबेलपुर गढ़िया, वहाँ पे। जैसे हम ये आलू दिखा रहे हैं वीडियो में जी। ये कौन सा आलू है? ये खयाती आलू है ख्याति आलू है? जी। हाइब्रिड? जी जी हाइब्रिड है जैसे इस आलू की ये आप जो पैकेट में भर रहे हो जी। तो ये आप यहीं पर बेच दिया कहीं मंडी वगैरह में ले जाओ? मंडी ले जाएंगे। कानपुर जाता है यहाँ का आलू, जितना भी पैदा होता है ज़्यादातर सभी किसान कानपुर ही ले जाते हैं। जैसे आपके जिस क्षेत्र के ज़्यादातर कानपुर ही जाता है। कानपुर ले जाते हैं जी जी ज़्यादातर आलू? ज़्यादातर कानपुर ही जाता है। कानपुर में क्या रेट चल रहे हैं आलू की, बिक्री क्या कैसी हो रही है? अभी फ़ोन किया था, पता किया था तो बता रहे थे कि 16 से लेके 18 तक हाइब्रिड आलू। हाइब्रिड बता रहे थे। तो ये जो आलू 16 रुपए से लेके ख्याति और पुखराज और मोहन आलू के रेट हैं। जी जी। तो ये आलू जैसे रेट बढ़ रहे हैं या सस्ता हो रहा है या महंगा हो रहा है? महंगा हो रहा था। पिछले हफ्ते एक हम गाड़ी ले गए थे तो सस्ता था, उस समय हमारा 13 रुपये में लगा था, 13 रुपये पर कुंटल। और अब वो थोड़ा बढ़ गया है तो अब वो बता रहे हैं कि 16 से लेकर 18 तक है हाइब्रिड। अब जब वहाँ पहुँचेगा बिकेगा तब ठीक से पता होगा। जैसे हमारे दर्शक लोग पूछते हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि हर जगह जैसे मंडी हम फरुखाबाद जाते हैं, कुरावली जाते हैं, हर जगह की मंडी की बिक्री अलग अलग होती है। जी जी जी। जैसे फरुखाबाद में खुला आलू बिकता है जी और क्विंटल के हिसाब से बिकता है। कुरावली मंडी में खुला आलू बिकता है मन के हिसाब से जी बिकता जी है। जी जी। तो कानपुर मंडी की क्या कैसी बिक्री रहती है, किसानों को कैसा वहाँ पहले तो ऐसा था कि पर कट्टे पे 4 किलो कटता था, लेकिन अब होली के बाद अब ऐसा हो गया मंडी का नियम कि बिल्कुल नहीं कटता है, किसान को पूरा मिलता है वजन। क्विंटल अब क्विंटल से चलता है। जैसे पहले सुनने को आया था कि एक पैकेट पे 4 किलो कटता था, मिट्टी के नाम मिट्टी के नाम पे काटा जाता था। हाँ वजन। जी जी। तो अब क्विंटल के हिसाब से बिकने लगा है, कोई कटौती, पूरा वजन मिलता है किसान को। जैसे हम अपने जो अकबेलपुर और ये मैनपुरी जिला में पड़ता है इस क्षेत्र में खड़े हैं जी। इस क्षेत्र में ज्यादातर आलू की कौन कौन सी वैरायटी का आलू किया जाता है? यहाँ ज्यादातर हाइब्रिड आलू किया जाता है, अधिकतर हाइब्रिड किया जाता है। और थोड़ा लाल भी होता है जिसमें हॉलैंड है 10%, 5 से 10% हॉलैंड, 10%। कम से कम। जैसे अब तो आलू की लगभग समाप्ति की हो रहे हैं। आज जी। हम आपके यहाँ पर देख रहे हैं डंप की भराई चल रही है और जी। आपके ही गांव में एक दो जगह और देखा है जी जो डंप किसान भर रहे हैं। जी। तो कितने दिन तक ये डंप वगैरह चलता रहेगा आलू का? अब ये एक हफ्ते नहीं चलेगा, एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। 2-4% बचा हुआ है कुल आलू में, जितना हुआ था बस खत्म है। जैसे 2-4% जब अगर जैसे बात की जाए उसकी कच्ची सीजन और पक्की सीजन आलू की, जी जो किसान कच्चा आलू खोदते हैं, जी जी, तो आपके यहाँ कच्चा आलू कितना खुदाई होती है? लगभग 50%। 50% कच्चा आलू हो जाता है, खुद जाता है, खिप जाता है। बाद बाकी जो किसान कुछ रख लेते हैं, कोल्ड में डालते हैं और पक्के पे जाके बेचते हैं। डंप ही लगता है थोड़ा बहुत, 10-15%। 10 से 15% डंप लगता है। अगर इस क्षेत्र के अगर स्टोर की बात की जाए तो स्टोर की क्या कैसी स्थिति है आपके क्षेत्र में? स्टोर हमारे क्षेत्र में 2 ही हैं पास में। वैसे तो इधर सराय की तरफ भी 2-3 नए कोल्ड बने हैं, एक इधर भी नया बना था पिछली वर्ष। तो लगभग 4 कोल्ड इतने पास में पड़ते हैं, तो भर गए हैं थोड़े, लगभग 70% से भर गए हैं। जैसे ज़्यादातर जानकारी मिल रही है और बताया जा रहा है कि स्टोर इस साल 60 से 70% मैनपुरी जिला, फरुखाबाद और कन्नौज जिले में जी भर पाए हैं। जी तो जी। इस वजह से आलू की शॉर्टेज भी है जी। तो क्या इसकी सच्चाई है? कितने % स्टोर भर पाए होंगे आपके क्षेत्र में? जैसे आप किसान हैं, आपको जानकारी होगी। इधर तो ऐसा ही लग रहा है कि 70 से 75% लगभग स्टोर भर गए हैं, क्योंकि ये लोकल में पड़ता है, इधर और ज़्यादा स्टोर है नहीं। तो स्टोर की क्या कैसी स्थिति है? अब स्टोर से अब निकलने भी लगा है आलू थोड़ा। जैसे हमने एक तरफ देखा है, कल हम गए थे जैसे हम 2 अप्रैल को छिबरामऊ एक शंभू कोल्ड स्टोरेज है उसमें गए थे जी। तो वहाँ पर निकासी स्टार्ट हो गई थी जी। और कल हम गए थे यहाँ भैंसरोली के पास एक स्टोर है, वहाँ पर किसान अभी भी स्टोर में रख रहे हैं। वो कह रहे थे दोबारा आलू लगाया जैसे कच्ची सीजन खोद के दोबारा आलू लगाया। जी 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 जी। हमारे यहाँ लग रहा, आपके यहाँ दोबारा लगता है? उसकी खुदाई उसकी भी खत्म हो गई। 1-2% लगता है, 1-2 किसान लगाते हैं, ज़्यादा कम लगाते हैं। स्टोर में तो जाना बिल्कुल बंद है, स्टोर में जाना बंद, बिल्कुल बंद है। और अगर जैसे पैदावार की बात की जाए तो पिछली साल से पैदावार कम है या ज्यादा है? 20% पैदावार कम है। पैदावार कम है कम है इस वर्ष।
तो इस साल आपको क्या उम्मीद लग रही है? जैसे 2000 लगातार 3 सालों से किसानों को आलू में नुकसान हो रहा है। जी इस साल लोकसभा का चुनाव भी है। जी जी आने जी वाले जी चंद दिनों में चुनाव के तारीख भी घोषित हो चुकी है, कब होगा। जी। तो किसानों को 2024 में क्या उम्मीद है? क्या लगातार इसी तरह से जो अभी रेट चल रहे हैं जी जी। या फिर बाद में कुछ सस्ता भी होगा? अभी तो कहा नहीं जा सकता है, उम्मीद है कि इस वर्ष ठीक ही रहेगा रेट, और फिर पत कह नहीं सकते हैं। जैसे लोकसभा 2024 का चुनाव है, किसानों की तरफ से भी कोई मांग है इस चुनाव में? किसानों की तरफ यही मांग है कि किसानों की फसल का जो दाम है वो उचित मूल्य मिलना चाहिए। अब वो तो पैदावार पे निर्भर करता है ना, जैसे अगर पैदावार अगर हाई रही, ज़्यादा रही, तो निश्चित रूप से मूल्य उतना नहीं मिल पाएगा। अगर कम रहा तो निश्चित मिलेगा। तो इस बार पैदावार ही डाउन है, तो पैदावार डाउन हो तो मूल्य तो पैदावार कच्ची सीजन पे तो निश्चित है, फायदा मुनाफा मिले तो कितनी पैदावार हो। अगर आलू पर नुकसान की बात की जाए जी। तो कच्ची सीजन में तो किसानों के आलू गर्मी की वजह से बीज भी कुछ सड़ गया जी था। जी जी हाँ उस वजह से भी नुकसान हुआ। जी। कितना किसानों को इस साल कच्ची सीजन में नुकसान रहा या फायदा रहा? बहुत नुकसान उस बार रेट भी नहीं था ठीक से, रेट भी, और खेत में जो आलू लगाया बोया गया था उसमें भी बहुत सारा गल गया था आलू, तो लगभग 50% खेत में ही गल गया। उसके बाद रेट भी ठीक से नहीं मिला, तो उसमें तो किसान को घाटा ही हुआ है। अभी जाके पक्की में जब थोड़े कम किसानों के पास लगभग ये आलू बचा है, तब जाके थोड़ा भाव में सुधार हुआ है। आप हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दर्शक हैं, वीडियो को देखते हैं, जी। उनको आप कोई संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? बंगाल को आलू करे ना। अब मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितने भी किसान भाई हैं हमारे, है ना, वो अपनी अच्छी सी अच्छी फसल लगाएं, उत्पादन अच्छा होगा, और सरकार से यही गुहार है कि उसका उचित रेट मिलना चाहिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। तो ये रजनीश जी, अभी हम आप दिखा रहे हैं आलू, ये कौन सा आलू है? ख्याति। ख्याति आलू है। ये जो डंप लगा था आपका, डंप की अभी आप पैकेट में भर रहे हैं आलू को, ये हम दिखा रहे हैं। ये आपका कितने कट्टे का लगभग डंप लगा होगा? 350। 350 कट्टे का। तो आप किस जगह ले जा रहे हैं इसको बिक्री के लिए? कानपुर। कानपुर ले जा रहे हो? यस। कानपुर अभी क्या रेट आलू की चल रही है? 1850। 1800 रुपये क्विंटल बिक रहा है आलू। क्विंटल। जैसे आप ये किस दिन ले जाओगे बिक्री के लिए आलू को? कल ले जाओगे बिक्री के लिए। तो वहाँ पर और क्या कैसी स्थिति है आलू की, कि जैसे ऊपर डाउन या सस्ता, क्या रेट तक बिक रहा है? आलू जैसा हो वैसा पोजीशन है। जैसा आलू उसके हाँ, उसी के भाव होता है। और स्टोर की क्या कैसी स्थिति है आपके इधर? स्टोर की अब कम आएगी। कम है। এই অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত সমস্ত বক্তব্য বক্তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত। এই অনুষ্ঠান বাজারের নির্ধারক নয়। অনুগ্রহ করে ব্যবসায়িক পদক্ষেপের পূর্বে নিজের বিচার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। আলু রাখা বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। আলু রাখার পূর্বে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপ থেকে বিগত বছরের লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট ও তার পরিপ্রেক্ষিতে আলুর দামের ওঠানামা দেখে নিন। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।